Hello dear student, now we have studied the bridge course standard 10th maths 1 and 2 test number 2nd having the academic year 2021 to 2022. So after 30 days we have solved the test number 2nd. So आज हम टेस्ट सेकंड सॉल्व करने वाले हैं. सो क्वेश्चंस पेपर्स यहाँ पर दिया गया है. SCRT ने जो टेस्ट सेकंड का डे 30 के बाद जो सब्जेक्ट है देयर हैव द टाइमिंग 1 आवर. द मार्क्स हैविंग द 15 मार्क. द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स द ऑफलाइन टेस्ट इज हियर. Choose the correct alternative options for the questions given below. So every questions having the 1 marks, the total 4 questions, the 4 marks. So write the two numbers whose sum is the 17. ऐसे दो नंबर है कि जिसकी सम 17 रहेगी. You can choose the option is here -1 -18. The same number having the addition there is a -19. So number second 18 and 1 there is a +19. Both numbers having the same sign, the sign having the positive. The third C -1 comma 18, there have the 18 plus -1, the different sign subtraction, the smaller number subtracted from a bigger number. So we have get the answer 17. So there have the final answer as having the 17. So -1 and 18 there have the correct option has given. Then next question, what is the solution of the equation x plus y minus 12 is equal to 0. इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू क्या है तब जाके आपका आंसर राइट साइड में 0 आएगा. सो यू कैन चूज द ऑप्शन इज हियर 10 and 2 plus 12. 12 minus 12 that is a 0. So there is the first option as there. So see here the first of all option. First 10 and 2 is here. Then third, in a right angle triangle length of hypotenuse is 15 centimeter and find the length of the median drawn on the hypotenuse. So see here. So what is the correct answer? In a right angle triangle, when we draw the median on the hypotenuse, so the median is half of the hypotenuse. That is the theorem. So there is the hypotenuse is 15 centimeter. Then there is answer is the half of the 15. There have the 7.5. The answer is here 7.5. Then next the fourth question. In a triangle ABC, angle A is equal to 40 degree, angle B is equal to 70 degree and angle C is equal to what? So sum of the property of angles of a triangle, there has the 180 degree. All angles of a triangle is 100. The sum of all angles of triangles is 180 degree. So one angle A plus 40 plus B plus 70, that is 110, plus angle C is equal to 180. 180 minus 110, then there have the 70 degree angle. So the last question, the option of that answer as having the 70 degree. The next question, second, solve the following the subquestion 3 marks, having the each and every questions the 1 marks. One question 1 marks. The second one, the total overall the 3 question has there. So all 3 question having the 3 marks. And the next point, there is 8 mark. The question number 3, solve the following subquestions having the 8 marks. The 4 question has given divide the segment AB of length 7 centimeter into the ratio 3:2. This question we have already seen in the standard 8. So if angle ABC then PQR, then what is the property A and B? Solve that is the simultaneous equation. Total cost each and every question they are having the 2 marks. 2 4s are 8. There are the now we have solved this question on the paper. So see here, इक्वेशंस मैंने आपको सॉल्व करके पेपर्स पे दिए हैं, आप इसको चेक कर सकते हो. देखो जैसे पहला सवाल है, राइट द टू नंबर्स हुज सम इज 17. तो 18 minus 1 that is the 17. Then next question, there is x plus y is equal to 12. So what is the solution? 10 and 2. So see here 10 and 2.
Then next question, in a right angle triangle, the length of the hypotenuse is 15 centimeter. Then find the length of the median drawn hypotenuse. There is the BE, here is the diagram. In that, there BF is the median on the hypotenuse AC. Then you can see that is the half of the distance. So 7.5 is the half of that distance. The next question, the inner triangle ABC, angle A is 40 degree, B is equal to that there have the 70 degree, and angle C is what? So solve this question. Measure of angle is 180 degree. The angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. 40 plus 70 plus angle C is equal to 180. So there have the final answer, angle C is the 70 degree. Then the next question, 1 marks. Solve the following sub questions. If x plus y is equal to 65 and x minus y is equal to 35, equation आपको the simultaneous linear equation, that is the basic questions. So two variables question is here. So x is one variable, y is the another variable, two variable in that equation. So x plus y is equal to 65, that is the first equation. Then that is the second equation, x minus y is equal to 35. So there is the second equation. So then both the equation x, so there is addition of this number. In addition, there are no changes of the sign. So you have cut this plus y and minus y, and that is addition x plus x. There is the 2x, there have the sign is here. C plus is here, but addition of both the equation. And then 65 plus 35 is equal to 100. So 2x here is the multiplied. When we shifted that right side, there is a divide. Then x value is a 50. The putting this value in equation 1, the x plus y is equal to 65. There is a 50 plus y is equal to 65. And then the value we get, see here. So see in this question. So x is equal to 50 degree. The answer is we have get the x is equal to 50 degree. Then the second explanation, x plus y is equal to 60. आप इसको प्लस क्वेश्चन फर्स्ट में रख सकते हैं, क्वेश्चन सेकंड में रख सकते हो. एट द प्लेस ऑफ x की जगह पर आप वैल्यू रख सकते हो. यहाँ पर रखने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा 50 प्लस वाई is equal to 65 and y is equal to 15. The x is equal to 50 and y is equal to 15, that is the 65. And 50 minus the minus 15, then what is that answer? So see here, the 50, there is a x and y is equal to 15. So 50 plus 15, there is a 65, and 50 minus 15, that is the 35. Okay, there see here, that is a 50 and 15. So मतलब आपके दोनों भी करेक्शन आप कर सकते हैं. जैसे भी आपने 50 में से 15 को माइनस किया तो आपको 35 आंसर आएगा, और दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो वहाँ जाके 65 आएगा. या आपका अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि इक्वेशन में वो वैल्यू पुटअप करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको कहीं भी उस आंसर को देखने की ज़रूरत नहीं है. इक्वेशन का यही एक फ़ायदा होता है कि हम खुद उसका आंसर्स निकालने के बाद हम उसको दोनों वैल्यू में रख के दोनों अगर बैलेंस होते हैं तो हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. Then second question, write the following statement in equation from using the variable x and y. Sum of the two numbers is 15 and the difference is 11. आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि इक्वेशन में ऐसे दो वेरिएबल है कि उसकी जो सम है, सम मीन्स प्लस एडिशन, वो इसकी 15 है और दोनों का डिफरेंस 11 है. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, वो फर्स्ट वेरिएबल x वेरिएबल एंड y, सम ऑफ बोथ वेरिएबल्स हैविंग देयर इज द x plus y is equal to 15 is there. Then there is the difference of that x minus y. When difference, there is a subtraction sign. When is the sum, there is a plus sign. So see here, बहुत सारे बच्चों को सम नहीं समझता, इसलिए हम सम रहा तो क्या सम एंड एडिशन, एंड डिफर अगर रहा तो डिफरेंस सब्ट्रैक्शन का साइन वहाँ पर यूज़ करना है. मतलब आपको जो लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करनी है, मैथमेटिकल ऑर्डर में. Then second, identify the test by which the given two triangles are congruent. अभी टेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बताती हूँ. क्वेश्चन पेपर आपके दिए हैं लास्ट पेज पे. यहाँ पर देखो
कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो हो चुका है अपना। आइडेंटिफाई द टेस्ट बाय विच द गिवन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ए बी ए सी, द ए बी कॉन्ग्रुएंट, उसका सेम साइन पी क्यू दे रहा है, ए बी का सेम साइन पी क्यू दे रहा है। और यहाँ पर जैसे कि बी सी है, तो बी सी का जो है वो सेम साइन यहाँ पर क्यू आर पे दे रहा है, और ए सी का जो साइन है वो पी आर पे आपका सेम साइन दे रहा है। तो यानी आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टेस्ट है दोनों ट्रायंगल में। तो साइड टेस्ट रहेगी कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, देन बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। द एस टेस्ट साइड टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके करस्पॉन्डेंस अगर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो हम देखते हैं उसके, देखो अगर उसके करस्पॉन्डेंस वहाँ पर अगर क्वेश्चंस दे रहा है तो हम उसके करस्पॉन्डेंस क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर में नज़र आएगा अपने को। So see here the side test, then the last pages, no, there is a not question is related about it. So question number 3, solve the following सब questions, अलग questions दे रहा है। See here, इसे को solve करके दिया है यहाँ पर, ओके बाय द एस जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू देयर इज द क्यू सी, ओके। देन नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, डिवाइडिंग, ये 8 स्टैंडर्ड में हुआ है, आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 3/2 रेशियो के अंदर आपको सेगमेंट को डिवाइड करना है। सेगमेंट की लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर दी है। सो 3 + 2 5 होगा, यानी 5 सेक्शन बनेंगे। 5 टाइम्स अपने को डिवाइड करना है, इसके 5 पार्ट्स बनेंगे, A1 A2 A3 एंड A4 A5। एक्यूट एंगल लेना है, आप अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों भी साइड में ले सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके वहाँ पर उसको में डिस्टेंस लेके, जैसे कि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर अपने को 5 सेक्शन बनाने हैं, 5 टाइम्स उसको डिवाइड करना है, उसके 5 पार्ट्स बनने वाले हैं जो भी लंबाई है। तो वहाँ पर अगर जैसे जो भी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, जैसे 1.4 लिया है हमने कंपास में, उसको मार्क करके हम बराबर 5 कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेके भी 5 कर सकते हैं कोई भी। और वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, फिगर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिगर नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए पी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल सी तुम्हारा लास्ट वाला एंगल ए आर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। सो सी हियर बी टू क्यू, सी टू आर दे रहा है वहाँ पर, यहाँ पर ये सी आर। एंड देन अगर साइड का रेशियो आपको देना है, अगर वहाँ पर वो ये सिमिलर का साइन है, इफ ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सो इन सिमिलैरिटी देयर ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट साइड्स आर इन प्रपोर्शन। उसके जो साइड्स होते हैं प्रपोर्शन में, अगर कॉन्ग्रुएंसी रहेगी तो ऑल साइड सेम रहते हैं, अगर सिमिलैरिटी रहेंगी तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है। यानी फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू, देन बी सी अपॉन क्यू आर, देन ए सी अपॉन पी आर। इसी तरीके से ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट के अंदर डिफरेंट पाया गया है। अब सॉल्व द एग्जाम्पल, 14 = 3y + x एंड 20 = 20y - 3x। इसको हमको दो जो भी वेरिएबल है हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, कांस्टेंट नंबर राइट में लाएंगे, प्लेस अगर चेंज होती है इधर का उधर, लेकिन नंबर तो यहाँ पर मैंने ये 14 = 3y + x एंड -20 लिया है। वहाँ पर क्वेश्चन में 20 दे रहा है, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आता है उसका सॉल्व करके, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा तो शॉर्टकट उसको -20 देने के बाद जो करेक्ट आंसर फाइंड आउट होता है, x + 3y = 14 एंड देन -3x + 2y, there is the -20. So multiplying the first equation by 3 and multiplying the second equation by 1, so 3x + 9y = 42. देन 1 से मल्टीप्लाइड करने का वही नंबर आएगा, -3x + 2y = -20. Then both there is a addition, +3x - 3x get cancelled. There is a +9y and +2y, there is 11y. So y = 22/11, y = 2. Putting this value in equation first or second, जब हम पुट करते हैं तो x + y = 14, the x = 3 × 2 6, x = 14 - 6, that is the 8.
ये हमारा सम 8 और 2 उसका आंसर आएगा। अगर डालते वैल्यू तो वहाँ पर दोनों भी इक्वेशन सेम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो 20 पॉजिटिव दिया है तो वो नंबर वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देन लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 4 पेंसिल्स इज प्राइस 60. The total cost of the 4 pencil is price 40 and find the cost of 1 pen and the 1 pencil. So price of 1 pen be the x and price of 1 pencil be the y. इसको हम x और y, that is according to the first condition 6y plus 4x, because there have the 6 pen 6x and 4 pencil, that is a 4y. The total there is a amount is 60 degree. 6 पेन की और 4 पेंसिल्स की कीमत होगी 60. और देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन अगर हम चेंज करते हैं वहाँ का कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, अगर हम चेंजेस करते हैं दोनों को तो 4x दैट इज़ अ 4x प्लस 6y. अगर 4 पेन हो जाएगी और 6 पेंसिल हो जाएगी तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40 अमाउंट आती है. दोनों को हम सम कर देंगे. 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 100 एंड देन 10 कॉमन निकलेगा वहाँ पर. 10 इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 एंड देन x माइनस वाई दैट इज़ द 100 अपॉन 10 दैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा. और x प्लस तुम्हारा जो x प्लस वाई रहेगा तो अपॉन डिवाइड करके तुम्हारा वहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आएगा अपॉन में. और सेकेंड हम क्वेश्चंस देखते आगे. अगर हम माइनस देते हैं तो 2x माइनस 2y, एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ है प्लस ही साइन है. एक मिनट हम क्लियर करते हैं उसको. यहाँ पे अगर हम दोनों प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यानी 10 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई. बाय द मिस्टेक वहाँ पे माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा x और y के बीच में प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस रहेगा. यानी इक्वेशन हमको क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 10. ओके देन नेक्स्ट, सो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16. 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40. अभी यहाँ सब्ट्रैक्शंस होगी इस क्वेश्चंस में, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे देयर इज चेंजेस द साइन, वहाँ पर साइन तुम्हारे चेंज हो गए. या 2x माइनस 2y, यहाँ पर माइनस आएगा. पहला क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 रहेगा. दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज़ अ 10 रहेगा. सेकेंड द x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 देन दैट इज x माइनस वाई. सो 10 सी ईयर चेक ईयर क्वेश्चंस. सो x माइनस वाई दैट इज़ 100 है तो वहाँ पर माइनस नहीं होते हुए प्लस रहेगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. 10 10 ज़ा 100 तो द क्वेश्चन बनेगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड क्वेश्चन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10. सो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन की हम थर्ड और फोर्थ मिलेगा वो कट होगा. तो x इज इक्वल टू 20 होगा. x इज 20/2 द x इज इक्वल टू 10 एंड द y इज इक्वल टू 10. यानी हमको प्राइस ऑफ पेन 10 मिलेगी, प्राइस ऑफ पेंसिल 10 मिलेगी. जैसे भी 10 एक पेन की कीमत 10 है तो 6 पेन की 60 होगी और 4 पेंसिल की हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 पेंसिल की 40 हो जाएगी. 60 प्लस 40 100. और हम उसको इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पे 40 प्लस 60 कितना दे रहा है हमको क्वेश्चन के अंदर 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 दैट इज 10. फर्स्ट कंडीशन 6x. So that is a question has so C is 60 plus 40